Hello friends, welcome once again. Now in this video we'll talk about the core qualities of the Indian Armed Forces. I made a video a couple of time back जिसमें बताया था कि आर्मी का core qualities है courage, honor, integrity, loyalty, duty, respect, selfless service. Navy का duty, honor, courage. Air Force का integrity, mission and excellence, है ना? So today we will take one, that is integrity, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अखंडता. You can see it is there in the army wala also, it is there in the Air Force wala also. Just because it is not written in the Navy does not mean integrity does not is not a required quality in the Navy. It's not like that. You cannot be discharging your duties if you lack integrity, and moral courage cannot come if you don't have internal consistency or integrity. So it is there. For the purpose of definition, integrity is the practice of being honest and showing a consistent and uncompromising adherence to strong moral and ethical principles and values. क्या मतलब है? इंटीग्रिटी या अखंडता ये एक आपका कंडक्ट में एक प्रैक्टिस में होने वाली चीज़ है, that you are being honest and you show a consistent an uncompromising adherence. Uncompromising मतलब जिसमें आप अपने असूलों से विचलित नहीं होते हो, to strong moral and ethical principles and values. अब ये आर्म फोर्सेस के सिलेक्शन के स्टेज में देख रहे हैं, डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस पूरे आर्म फोर्सेस के सर्विस के ड्यूरेशन में एंड पोस्ट रिटायरमेंट भी है. So this is not only relevant to candidates who are going for the SSB that you have to demonstrate, because after all this will be the service quality जो कि आपको during the course of training दिया जाएगा. ये हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी है. तो इस ट्रेनिंग में भी I need to be a man of integrity when I'm giving you training in the name of training for SSB. I need to discharge this quality of integrity. So when people like us who are into training and they claim they are number one, but they tell you never write sentences that will reflect that you are stress prone, have suicidal tendency, fear of phobia, never write sentences that will reflect that you are having strong craving for power and wealth. Self-description, while writing a self-description, do not mention anything about your weakness and core qualities: power of expression, social adaptability, sense of responsibility, cooperative nature, liveliness and courage. इस तरह के जो tips and tricks देने वाले हैं, definitely they may be doing financially extremely well. They may claim they are number one. Many boys and girls must be going to them. They may claim every हफ्ते में वो गधों को घोड़ा बनाते हैं. All that is fine, but they lack integrity. बहुत सिंपल बात है. They lack integrity because they are using manipulative techniques to manipulate young boys and girls in the name of SSB training. So this is definitely not a conduct of integrity, है ना? ऐसे लोग मतलब इंटीग्रिटी तो बोला जाता है कि आप अंधेरे में क्या करते हो, ये तो खुल के बुक पे लिख के दे रहे हैं. सो दिस इज डेफिनेटली लैक ऑफ इंटीग्रिटी. सो आप इस तरह की ट्रेनिंग करके अगर आप SSB में जाते हो और ये पकड़ा जाता है, इट विल बी put into the category of lack of integrity. Now it does not matter which lot of SSBers trained you, you will bear the cost. And imagine अगर आप suicidal tendency, craving for power and wealth के साथ चले गए और वहाँ जाके ये सब करना शुरू कर दिया, you will become the next Colonel Kapurthala. So what this coaching is doing in the name of SSB coaching is nothing but lack of integrity, manipulation. So that is not what is required. So you may be very educated, you may be extremely talented, you may be a psychology master's holder, degree holder, postgraduate, doctorate degree holder, trained by DIPR, from DIPR. You may be rich, you may be doing number one, you may be converting 4 gadas into ghoda every week. You may be rich, you may believe you're very cool. All that is fine. Ultimately, how you treat people, how you train candidates, how you maintain the trust between DIPR, the candidate and your training, everything has to be aligned. So if there is a deviation to that, it does not matter how rich you are, how educated you are, what postgraduate degrees you have, how many videos you make, what DVD you sell, what book you sell, you lack integrity. So integrity is everything. So ये मेरी बड़ी पक्की सोच है कि you may make beautiful videos, आपके लड़के लोग आपको promote करें, it does not matter. If your training is lacking integrity, if your book and what you write in the book is lacking integrity, it simply means integrity is the practice of being honest and showing a consistent and uncompromising adherence to strong moral and ethical principles and values, and you lack that simply because your personal aspiration
your money making, like यहाँ पे से never write sentences will reflect that you are having strong craving for power and wealth. This is what you're showing. So इस तरह की ट्रेनिंग करके आप SSB में जाओगे, आप फंस जाओगे. So in ethics, I take classes for civil service का GS4 के लिए values in ethics में. Ethics में integrity is regarded as the honesty and truthfulness or accuracy in one's action, your words, your deeds. So when you make people train like this, where is the accuracy and honesty and truthfulness in your conduct? So you may not respond to me, you may respond to me, whatever you are deep inside, you know what are you doing. So similarly बच्चे तुम लोग भी जब ट्रेनिंग करते हो, please make sure do not get manipulated and आप integrity में ना फंस जाना, because integrity is a core quality. बड़े सिंपल भाषा में integrity is choosing your thoughts, words and action based on your personal values rather than personal gain. अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपने एक्शंस को वैल्यूज के आधार पर सेलेक्ट करना, ना कि आपके स्वार्थ के आधार पर. सो व्हेन यू राइट बुक्स, प्लीज मेक श्योर यू राइट योर बुक्स बेस्ड ऑन वैल्यूज, नॉट योर पर्सनल गेन. इफ यू डू दैट, you will not write all these things what you have written in your book, and the children will not be trained like that. So please take care of that. And integrity is doing the right thing even when no one else is watching you. और आपने तो बुक में लिख दिया when everyone is watching you, DIPR is watching you. No, please, this is an act of disintegrity. तो इस तरह के बुक्स को ना पढ़ना ना प्रमोट करना. तो जो भी लड़के लड़कियां वीडियो बनाते हैं, जरा एक्सप्लेन करना, why do you call he is number one? So I want to know, because this is damaging the system. This is lack of integrity. So when your actions embrace your values, क्या मतलब? When your actions embrace your values, the consequences is integrity in your conduct. So मानसा वाचा कर्मणा में अगर आपको SSB के अंदर इंटीग्रिटी दिखना है, तो आपको पहले जीवन में अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करना पड़ेगा. Only when there is an alignment between actions and your values, the result is integrity. So there has to be a conduct which is based on integrity and not on personal gains. So SSB में जब जाते हो, मानसा वाचा कर्मणा, they are looking for two kinds of consistency or two kinds of congruence, intra-technique congruence and inter-technique congruence. और ये तभी आएगा when your values and your action there is a overlap, और ये overlap जितना ज़्यादा होगा उतना you are a man of integrity. So SSB में they expect 40% overlap in 4 domains, that is physical, intellectual, emotional and value dimension. So please make sure that आपके conduct में, आपके actions में, कर्मा वाचा मानसा में please bring congruence. The claimed values जो आप SD में लिखते हो, claimed values, and जो आपके actions है TAT, GTO, फट्टा बल्ली में, there has to be an overlap. So when your values embrace your actions, or when your actions embrace your value, this overlap is called integrity. तो मुझे बताना इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आया. तो प्लीज़ बी केयरफुल, सेलेक्ट योर ट्रेनर्स वेरी केयरफुली. आजकल पता है ना, नकली इंजेक्शन बेचते हैं कोरोना के नाम से. उसी तरह से ये नंबर 1 वाले भी बहुत नकली ट्रेनिंग बेच रहे हैं, बहुत नकली ट्रेनिंग बेच रहे हैं. सो यू हैव टू गार्ड, बिकॉज व्हेन आई एज अ कोचिंग वाला सर, आई लैक इंटीग्रिटी, बिकॉज मुझे लक्ष्मी चाहिए, बड़ी मेहनत करता हूँ बट आई लैक इंटीग्रिटी. ये मेहनत किस लिए करता हूँ? बिकॉज जितना मेहनत करूँगा उतना मैं आपको बेवकूफ़ बना के लक्ष्मी, ये बहुत सैड पार्ट है. एंड आई एम सेइंग इट अगेन अगेन बिकॉज मुझे पता है बच्चे लोग गुमराह हो रखे हो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आपके एक्शन और आपके जो वैल्यूज़ है उसके अंदर टोटल डिसअलाइनमेंट आया हुआ. आई विल शो यू थ्रू एन एग्जांपल. तो वो है ना, सो बहुत सिंपल बात है. इंटीग्रिटी इज व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू, दे हैव टू बी वन. आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, आप जो करते हो, उसके अंदर एक जुड़ाव हो. अब वो वीडियो में हो, बुक में हो, क्लासरूम में हो. सो आई विल नेवर से कि अगर आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी हो तो उसको हाइड कर दो, बिकॉज दिस इज लैक ऑफ इंटीग्रिटी इन मी. और अगर उसको आप मानते हो, दिस इज लैक ऑफ इंटीग्रिटी इन यू. एंड ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं है. ये सिर्फ मेरा कोचिंग का स्वार्थ है. ना तुम्हारा भला होगा, ना SSB का भला होगा, ना ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा. ज़रा सोचना, इस पर कमेंट बताना. और मैं इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल दूंगा, 2 TAT के रेस्पॉन्सेज को मैं एक्सप्लेन करूंगा. शायद वो दोनों रेस्पॉन्सेज आपने पहले देखा होगा, लेकिन हमने उसका पहले सिर्फ इंटरप्रिटेशन किया था. नाउ आई विल शो यू कैसे उसके अंदर के जो वैल्यूज़ आ रहे हैं उस TAT में और जो आपने SD में लिखे,
सो TAT में जो हीरो के एक्शंस आ रहे हैं और जो SD में आपने वैल्यूज लिखे, दे आर नॉट मैचिंग. दैट मीन्स योर एक्शंस एंड योर वैल्यूज, देयर इज नो ओवरलैप. दिस इज लैक ऑफ इंटीग्रिटी. तो मुझे बताना उसमें क्या समझ में आया. तो ये दिस वाज द पिक्चर. और इस पिक्चर के ऊपर जब आपको ये पिक्चर दिखाया तो वी एक्सपेक्टेड यू टू act out of integrity, है ना. we were wanting you to choose your thoughts, words and action based on values rather than personal gain. और आपने एक कहानी लिखा जो कि आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जो आपके क्लेम्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसके ऑपोजिट में आ रहा था, उसके अगेंस्ट में आ रहा था. एंड वॉट एवर इस कैंडिडेट ने लिखा है, हिज बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ द हीरोज बिहेवियर और हीरोइंस बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ हिज पर्सनैलिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरमेंट. एनवायरमेंट भी आप ही बना रहे हो क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने सिर्फ पिक्चर दिया है, आपने बोला है कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम. तो लेट्स लिसन टू दिस response by a candidate and then let's understand कि इसमें क्या हुआ. In this picture I perceive two characters, one male and one female, both are in the age group of 18 to 22 and mood horny. Action of my story is don't knock the door Raja, come directly inside Raja. Reshma, a 21-year-old graduation student, was doing her graduation from an all-women's college. Since there were no boys in her college, her appetite, thirst and hunger for boys kept on increasing day by day. So she installed Tinder in her mobile. And within few seconds, she got her first match with the boy of adjacent college. So the boy was shy to meet her, so she went to meet him and jumped inside from window to his hostel room. They both had fun, and during the fun, they broke the bed as well as their virginity. But that night was the inspection night of the hostel room of the boy. He was a student of B.Tech in carpentry. He panicked, but he managed to arrange some funds from his friends and went out to buy some wood, iron nails and hammer. He came back and repaired the bed. So in the inspection, he got A grade. So in the inspection, he got A grade. So the story ended with A grade. But initially क्या हुआ? There was a girl who was in a all girls college. So she became horny, thirsty and hunger for lust grew. So she downloaded Tinder, got a boy, went to his room through the window. The boy was shy but the girl was very courageous. उसके बाद they had fun, means sex. They broke the bed. The carpenter boy arranged funds, made it, got A grading. So this is the story. Now you tell me, is there integrity in his conduct? Is this boy pure in his thoughts? Is there corruption in his thinking or is it clean? अगर ये कैरेक्टर लड़की और लड़का है, आर दे ऑनेस्ट इन देयर कंडक्ट द वे देव कंडक्टेड देमसेल्फ? तो सोच के देना, जब यही लड़के को हम ट्रस्ट वर्ड देते हैं, ट्रस्ट, तो ही सेज ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलेशनशिप. वाज दिस गर्ल ट्रस्टवर्दी एज अ डॉटर, एज ए कॉलेज स्टूडेंट? वाज दिस बॉय एज ए कॉलेज स्टूडेंट ट्रस्टवर्दी? सो मैनिपुलेटिव पीपल लैक इंटीग्रिटी. सो दिस इज इंटीग्रिटी बीइंग मैनिपुलेटेड बिकॉज आपने लास्ट में बोलता अल्फा ग्रेडिंग मिला बिकॉज कारपेंट्री में उसने पता नहीं क्या अपना चारपाई ठीक कर लिया, बट चारपाई टूटा कैसे? सो पता नहीं, मेरे को कमेंट बताना कि कैसे दिस स्टोरी इज लैकिंग इंटीग्रिटी. नाउ सेकेंड वन इज दिस स्टोरी. नाउ द पिक्चर गिवन वॉज दिस वेर यू सी टू people, one male and one female sitting. There appears to some conflict, so definitely as a psychologist we want to know what is the problem between them. और आपने एक कहानी लिखा है जिसमें एक हस्बैंड एंड वाइफ की कहानी बनाई है. दिस ऑलरेडी यू हैव सीन इट बिफोर, सो आई वांट टू नो व्हाई देयर इज लैक ऑफ इंटीग्रिटी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हियर. कमेंट लिख के बताना. इसमें इस लड़की का नाम सुमा बोलता है और ये सुमा का हस्बैंड है. सो सुमा इज अ 24-year-old गर्ल एंड हिज की जगह हर होना चाहिए. Her husband told her to have physical relationship with his boss. Now this is interesting. Why? Because he wants promotion. Then after some time, when she goes to her husband's boss, his boss totally done लिखता फिर काट दिया, refused to have sexual relationship with her and told her that I want to see your husband's behavior because I have doubt that he is not a good person because कुछ लिख के काट दिया. I've received so many complaints from करके काट दिया. He can do anything for the promotion. मतलब आपका हस्बैंड अपने प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकता है, इंक्लूडिंग आपको बॉस के पास भेज सकता है. इनफैक्ट आप आ ही गए हो फॉर सेक्स के लिए ताकि उसका प्रमोशन मिल जाए. यानी ये लड़का अपने SSB के रिकमेंडेशन के लिए भी कोर क्वालिटी को छुपा सकता है,
अपने आप को नंबर वन बनाने के लिए लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी छुपाने की एडवाइस दे सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही तो कुछ इधर भी हो रहा है। तो वो बोल रहा है योर हस्बैंड कैन डू एनीथिंग टू गेट हिज प्रमोशन, सो आई गिव यू अ सजेशन। सो बॉस ने एक सजेशन दिया, प्लीज़ लीव योर हस्बैंड। अब बॉस से पूछो अपने हस्बैंड को छोड़ के वो जाएगी कहाँ पे? तो क्लियरली मुझे बताना क्या इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है? हु इज़ द हीरो? क्या सुमा हीरो है, उसका हस्बैंड हीरो है, या बॉस हीरो है? बॉस हीरो तो क्यों हीरो है? क्या ये बॉस के घर में इस तरह से जाना इट इज़ ए सोशल स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है? क्या ये कोर क्वालिटी को हाइड करने का वो तो नहीं है? मतलब क्या है ये इसमें, मेरे को बताना। तो क्लियरली जब इसी लड़के को WAT देते हैं तो लिखता है, WAT में लस्ट देते तो लिखता है लस्ट पोल्यूट्स थिंकिंग, लस्ट डिग्रेड्स ह्यूमन कंडक्ट। लेकिन TAT जब देता है तो उसमें लस्ट के ऊपर एक्ट करके प्रमोशन लेना चाहता है। तो आप मुझे बताओ, ये तो हमारे उसी कोचिंग वाले सर की तरह है जो कोर क्वालिटी को हाइड करने की बातें बोलता है और नंबर वन भी बोलता है। सो देयर इज ए इनकॉन्ग्रुएंट। तो आई नीड समबडी टू एक्सप्लेन मी व्हाई सच ट्रेनिंग इज नंबर वन। ये वो जो लड़के वीडियो बनाते हैं, बड़ा प्रमोट करते हैं, प्लीज कम एंड टेल कि व्हाई दिस कोचिंग वाला सर इज नंबर वन। सो ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था माइंड मैटर्स। ये बंजर भूमि में फसल, अच्छी फसल पैदा करने की बात करते हैं, जहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसी में अफसर बनाने की बात करते हैं, गधों को घोड़ा बनाने का। तो वाई दे आर नंबर वन? यार ये तो देश के साथ गद्दारी हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचना कि लस्ट के बारे में लिखता है लस्ट पोल्यूट्स थिंकिंग, लस्ट डिग्रेड्स ह्यूमन कंडक्ट, बट यू से कि सुमा के हस्बैंड ने उसको बोला। तो ये तो मिसमैच हो रहा है। आपका एक्शन इन TAT एंड व्हाट यू राइट इन WAT, देयर इज अ मिसमैच। और हम तो इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं। SRT में एक SRT है, he was going study with his girlfriend, one day she insisted for physical relationship, so he will, यहाँ पे लिख दो गंदी बात आफ्टर मैरिज, नॉट बिफोर मैरिज, वैल्यू सिस्टम गलत हो जाएगा। यहाँ बड़ी अच्छी बात मिलता है, यहाँ लिखता है गंदी बात, यहाँ पे बोलता है अपने बॉस के पास जा। सो integrity is choosing your thoughts, words and action based on values rather than personal gain। तो मुझे समझ में नहीं आया इतना मिसमैच क्यों हो रहा है। और SD में हाइड कोर क्वालिटी स्प्रिंकल ऑयल क्यों ये ट्रेनिंग हो रही है? तो कहीं ना कहीं आप गिफ्ट रैपिंग ठीक कर रहे हो, बट अंदर ये जो अंदर बंदा है इसको हाथ नहीं लगा रहे। तो मुझे कमेंट में बताना कि इज इट एन एक्ट ऑफ इंटीग्रिटी? क्या आपको लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग करके या इस तरह का एक्शंस को करके, इस तरह का मैनिपुलेटिव ट्रेनिंग करके आप अपने परफॉर्मेंस में SSB में कॉन्ग्रुएंस ला सकते हो? मुझे नहीं लगता कि नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन द सिलेक्शन सिस्टम। और जो इस तरह की कोचिंग देते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी कर दो, पावर हंगर हो तो उसको छुपा दो, कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, ये लोग भी बहुत कट्टर SSS थे वहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे यार। इनके लिए बड़ा रेस्पेक्ट था। बाहर आके सिविल में आके इतने कैसे करप्ट हो गए ये? क्या इनके अंदर वो करप्शन के बीच फौज में भी थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स में? तो वो जो कोर क्वालिटी था क्या उनका वहाँ पे भी करप्ट था? क्या ये बच गए क्या कपूरथला के कर्नल की तरह? वाई दे आर डूइंग दिस? बड़ा इज्जत करता था इनका, अब नहीं कर पा रहा यार। सो आई डोंट नो वाई दे आर डूइंग लाइक दिस। सो भैया आपको भी समझ लो, if you want to get recommended from the SSB, you have to bring congruence in your performance, and to bring congruence in your performance, आप ये मुखौटा पहनना छोड़ दो और इस पीछे वाले बंदे को ठीक करो। So when you choose your thoughts, words and action based on values rather than personal gain, that's the time this will come. So your values and your action, there must be an integrity. So your action must embrace your values, and SSB is looking for 40% congruence minimum, that is 90 out of 225, this is 40%। आपको रेकमेंड होना तो 360 out of 900, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। सो यू हैव टू डू दैट। और इसके लिए आपको अपने ये जो कोचिंग सेंटर्स है इसको ध्यान रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि क्लियरेंस इज ओनली 3.6%। तो 3.6% है, इसका मतलब है ज़्यादा लोग के बीच में, उनके एक्शंस में और उनके वैल्यूज़ में ये इंटीग्रिटी का ओवरलैप नहीं आ रहा है। So I'll request you to kindly pay attention to that. So you have to make a commitment yourself that I will have the moral courage to make my actions consistent with my knowledge of right and wrong. और आपको इस तरह की ट्रेनिंग में क्या सही क्या गलत वो आपको समझना पड़ेगा। सच कड़वा होता है लेकिन सच का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप मिलिट्री लीडरशिप में जा रहे हो। आप इस तरह की कंफर्टिंग लाई लेके कोर क्वालिटी को छुपाने वाली, सुसाइडल टेंडेंसी की ट्रेनिंग करने वाले नंबर वन जो होते हैं ना, ये सब भेड़ की खाल में भेड़िया बने हुए हम लोग,
बी केयरफुल। तो इसमें आपको भेद करना सीखना पड़ेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दैट। सो इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक वाली ट्रेनिंग जो करोगे, इसमें आपकी इंटीग्रिटी बढ़ने की जगह घट जाएगी, क्योंकि जो लोग दे रहे हैं उन्हीं का कहीं से मिसप्लेस हो रखा है। मतलब DI पर अगर इस तरह के लोगों को देखेगा, मिलेगा, तो क्या बोलेगा, क्या ट्रेनिंग किया और क्या ये करा रहे हैं, है ना। फर्स्ट, नेवर राइट sentences that will reflect that you are stress prone and have suicidal tendency. This is completely wrong. So understand, integrity is choosing your thoughts and action based on values rather than personal gain. ये कैंडिडेट के भी लिए भी एप्लीकेबल है और ये हम कोचिंग वालों के लिए एप्लीकेबल है। This is a big no. This is a big no. They must come on the video and tell why they are number one and why this is the right method. They have to tell, and all those people keep shooting videos for them, लड़का पार्टी, they also must explain क्यों ये भला कर रहे हैं। So जब तक ये समझ में नहीं आएगा, मैंने एक वीडियो बनाया माइंड मैटर्स। मेरी बातों को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ फर्टाइल माइंड, यू नीड टू हैव ए शार्प इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड मी। एक बंजर भूमि में, मतलब एक दिमाग जिसमें रस लगा, मेरी बात को समझेगा नहीं, वो यहाँ पे ही भागेगा। मेरी बातों को समझना है तो इसमें थोड़ा सा बुद्धि को समझना पड़ेगा। खेत को हल जोते बिना बंजर भूमि में बीज डालने से फसल नहीं आएगा। पैसे की बर्बादी है, ये नंबर 1 बनते रहेंगे, गॉड ऑफ SSB बोलते रहेंगे, बट इट इज़ लैकिंग इंटीग्रिटी। मेरी बात को क्या समझ में आया, ज़रूर वीडियो में कमेंट डाल के मुझे बताना। अगला जो कॉम्पोजिट बैच है 2 वीक्स एंड 4 वीक का, कल से शुरू हो रहा है। 2 वीक्स का जो ड्यूरेशन है वो है 17 मई 2021 से 29 मई 2021, एंड 4 वीक्स का जो क्लास है वो है 17 मई 2001 से 12 जून 2021। SML का क्लास का टाइमिंग जो होगा 6 AM से 8 AM मॉर्निंग में होगा, मंडे टू सैटरडे, और SSB का जो क्लासेस होगा वो 9 AM to 11 AM मंडे टू सैटरडे। संडे विल बी ए छुट्टी। अगर आप 2 वीक्स का लोगे तो SML एंड SSB साथ चलेगा, 6 to 8 SML एंड 9 to 11 SSB चलेगा। और अगर 4 वीक्स का लेते हो तो पहले आपका SML क्लासेस ख़त्म होगा 6 to 8 2 हफ्ते के लिए। जब वो 2 हफ्ता ख़त्म होगा तो नेक्स्ट 2 हफ्ते में SSB क्लासेस चलेगा 9 to 11 AM। सो those who wish to register, you are most welcome to register. Send me a WhatsApp at 8275577650. For any clarification, you can send me a call on this number. Kindly share this information with your friends. 500% clarity guaranteed. और मुझे ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद बताना कि क्या समझ में आया इंटीग्रिटी के बारे में, और मुझे बताना कि क्या किसी के रेडीमेड नोट्स रट लो या TAT रट लो, इससे आपके अंदर इंटीग्रिटी आएगा या डिसइंटीग्रिटी आएगा। इसके ऊपर मुझे ज़रूर कमेंट लिख के बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मुझे पता है मेरी बातें कड़वी है, बट आपके अंदर, आप फौज में ऑफिसर बनने जा रहे हो, सच सुनने की ताकत तो चाहिए। आप इतना गांधारी ना बन जाओ कि आप अपना पैसा बर्बाद करने को तैयार हो लेकिन सच सुनने को तैयार नहीं हो। मेरी बातों में अगर एक भी गलती निकाला तो मैं SSB का ट्रेनिंग छोड़ने को तैयार हूँ। बट अगर मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सही गलत की परख शक्ति सीखो। बिकॉज एक जंग लगे हुए, एक रस्टेड दिमाग से मेरी बात को समझ नहीं सकते, एक उपजाऊ दिमाग से समझ सकते हो। जिस तरह से एक उपजाऊ खेत में बीज को उगाने की भी ज़रूरत नहीं, उसको डालने से भी उग जाएगा, ठीक उसी तरह से अपने ब्रेन को ज़रा ध्यान दो और ट्रेनिंग के नाम से हमसे बेवकूफ़ ना बनो। वो मेरा सजेशन है आप लोगों को। तो ज़रूर मुझे इसमें कमेंट लिखना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थोड़ा सा करेज दिखाओ सच को सुनने की। सच को नहीं सुन पा रहे तुम लोग को, मीठी मीठी गोलियाँ सुन रहे हो, दुख होता है, बट क्या करें। सो इसके बारे में ज़रूर फीडबैक लिखना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।